Today we will see chapter single entity system. Into this single entity system we discuss practical problem number 3. How to calculate problem of single entity system. These are textbook page number 358 and problem number 3. We read carefully. Anjali keeps her books by single entity system. The name of the small businessman Anjali. He keeps her records into single entity system. Her position on 1st April 2016 was as follows. Assets and liabilities are given there and some additional information also given into this practical problem number 3. When you calculate the problem of single entity system, we prepare two necessary accounts. दो अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. टू नेसेसरी अकाउंट्स. फर्स्ट आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड वन मोर स्टेटमेंट वी प्रिपेयर. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ profit and loss as of 31st March 2018. Opening balance is given 1st April 2016 and closing balance is given 31st March 2018. 31st March 2017. The two statements are prepared into this. There are two statements. First statement is statement of affairs and second statement is our profit and loss. Statement of affairs just like a balance sheet. What is the purpose of opening two statements? We calculate the profit earned during the year. How many profits are earned that business during the year? We calculate the two accounts into this single entity system. प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कितना प्रॉफिट आपने साल भर में कमाया, इसके लिए आप ये दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप प्रिपेयर करते हैं 31st मार्च. द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द बुक्स ऑफ name of the businessman Anjali keeps her records into the single entity system. We prepare solutions. These are practical problem number 3. Textbook page number 358. तो हमने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 358 सामने रखिए. We calculate practical problem number 3, which is the solution. We prepare statement of affairs and statement of profit and loss. Statement of affairs just like a balance sheet. ये हमेशा balance sheet किस तरह होता है? We know the balance sheets, assets and liabilities. Into this problem, we calculate the amount of capital. यहाँ पर statement of profit and loss accounts, इसका structure prepare करते हैं. We calculate the profit during the year. कितना प्रॉफिट आपको साल में हुआ 2017 में, इसके लिए स्टेटमेंट अभी प्रिपेयर किया था. एटलीस्ट एक छोटा कॉलम प्रिपेयर करते हैं. एटलीस्ट के लिए एक छोटा कॉलम, बाद में पर्टिकुलर और आउटर कॉलम अमाउंट. एक ही कॉलम आपको प्रिपेयर करना है राइट हैंड साइड. ये अमाउंट कॉलम, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज. एटलीस्ट के लिए ये कॉलम. First paper statement we prepare now. Statement of affairs in the books of Anjali. Statement of affairs as on 31st March 2017. It's just like a balance sheet. Balance sheet किधर होता है? Assets and liabilities. Left hand side we have to write down liability and right hand side is write down the asset sides. Asset side should always debit balance. ये आपका स्टेटमेंट है.
opening and closing balances are given here. So we prepare two column in debit side, closing column and opening column. These are liability side. We prepare two column, opening and closing column, opening balance and closing balance, write down into this that column. Liabilities, opening, closing balance, assets, opening and closing balance. Liability show always credit balance. लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है और एसेट शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है. लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंस, एसेट शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है. इसे टोटल कर लेते हैं. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ फर्स्ट, देन आफ्टर वी कैलकुलेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3. Liabilities, opening balance is given there 1st April 2016, 8/4, 1st April 2016 and 31st March 2017. ये आपकी liability side opening closing, opening की डेट 8/4 देती है. Assets opening 1st April 2016, closing 31st March 2017. ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका है. वी राइट डाउन द लायबिलिटी साइड्स, एसेट्स साइड्स. ये आपका सॉल्यूशन है. फॉर्मेट ऑफ आवर सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. पहला आपका अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आगे लिख लेते हैं. इन द बुक्स ऑफ अंजलि, इन द बुक्स ऑफ अंजलि, इन द बुक्स ऑफ Anjali, statement of affairs. Statement of affairs as on 31st March. And the purpose of calculate the amount of capital. यहाँ पे आपको कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. ये कैपिटल का फिगर कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. इट जस्ट लाइक बैलेंसिंग. ऐसे साइड में लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है. वेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दिया थे एडजस्टमेंट्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको उसके बारे में डिस्कस करना है. यानी पहला स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं. एडजस्टमेंट बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. This is the format of our statement of affairs and statement of profit and loss. Write down the assets and asset sides. We read the problem carefully and calculate the answers. ये बाद में प्रिपेयर करना. We read the assets and liabilities. Opening and closing assets balance are given there. Assets and liabilities. Anjali keeps her records in singularity system. 1st April 2016 was as follows. Cash at bank. Cash at bank is our assets. Write down the asset side. Cash at bank. Cash at bank. Cash at bank is our assets. Write down asset. Cash at bank. Cash at bank. Cash at bank. It is bank assets. Write down the asset side. 4,000. There is date is opening 4,000 and cash in hand 1,000. क्लोजिंग में भी आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको दिए. 1st अप्रैल की आपकी कैश इन हैंड, 1st अप्रैल 2016 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4,000. उसके बाद में कैश इन हैंड, ओपनिंग का लिखना है कैश इन हैंड. कैश इन हैंड इज गिवन 1,000. उसके बाद में स्टॉक इज और एसेट्स. ओपनिंग बैलेंस इज गिवन दैट स्टॉक इज गोइंग टू 6,000. Stock 6,000. Sundry debtors. Opening balance is given there. Sundry debtors is 8,400. 8,400. उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी 7,500. प्लांट एंड मशीनरी
Plant and machinery is going to 7,500. Opening balance is given. Write down the opening balance. उसका डेट है 1/4 इसलिए 1/4 के कॉलम में लिखना है आपको. Bills receivable is our assets. Bills receivable. Write down the bills receivable and bills receivable column. Opening balance 2,600. Next, creditors is our liability. Creditors is our liability. Write down the liability side. Creditors amount is 3,500. 3,500 amount of creditors, and bills payable is also liability. Opening balance is given there. Write down the opening balance in opening column. Bills payable is going to 4,000. We read the second para. On 31st March 2017, ये ओपनिंग का बैलेंस था आपके ओपनिंग कॉलम में आपने लिखा. हर पोजीशन वाज एज फॉलोज. कैश एट बैंक 3,900. कैश एट बैंक 3,000 आपके पास लिखा हुआ है, खाली अमाउंट लिखना है उस कॉलम में, डबल लिखने की जरूरत नहीं. 3,900. कैश इन हैंड 2,000. 31st मार्च 2070 का बैलेंस आप देख रहे हैं. 31st मार्च के कॉलम में आपको लिखना है. स्टॉक इज गोइंग टू 9,000. ओपनिंग का 6,000 था, क्लोजिंग का आपका 9,000 है. सन्ड्री डेटर्स इज 7,500. ओपनिंग का 8,400 था, क्लोजिंग का 7,500 आपको दिया हुआ. प्लांट और मशीनरी इज गोइंग टू 7,500. ओपनिंग में भी उतना था, क्लोजिंग में भी उतना है, 7,500. दोनों अमाउंट सेम है. एंड बिल्स पेबल इज 2,200. बिल्स पेबल आपका 2,200. बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कॉलम में लिखो. बिल्स पेबल इज ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड. बिल्स रिसीवेबल 3,000. बिल्स रिसीवेबल 3,400. क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया. बिल्स रिसीवेबल आर एसेट्स एंड द एसेट साइड. एंड क्रेडिटर्स इज गोइंग टू 1,500. क्रेडिटर्स आपका 1,500. 1,500. क्या क्या आपने ऑल ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज राइट डाउन टू देयर कॉलम एंड क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी राइट डाउन टू देयर क्लोजिंग कॉलम. एसेट्स और लायबिलिटी आपने लिखे. ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटीज ओपनिंग क्लोजिंग. उसके बाद टोटल करना है. कैपिटल का व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज. एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल. एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इट इज कॉल्ड कैपिटल. ये आपका कैपिटल आपको होता है. वी मेक द टोटल इन एसेट साइड. एसेट साइड टोटल करो. कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं. 4,000, 1,000, 6,000, 8,400, 7,400, 2,600. इसकी टोटल करो पहले. कितने आ रही देखो. इसकी टोटल मेक द टोटल फर्स्ट. कितने आ रही टोटल देखो. टोटल इज गोइंग टू 29,500. ये टोटल आ जाएगी 29,500. ओपनिंग की ओपनिंग में लिखो 29,500. यहाँ पर डिफरेंस आने वाला. एंड क्लोजिंग की टोटल आपको लिखना है 3,900, 2,900, 9,000, 7,500, 7,400, 3,400. वाई 33300. 33,300. 33,300. इसमें से माइनस करो 1,500 और 2,200. क्लोजिंग के इसमें से क्लोजिंग का माइनस करो. ओपनिंग में से ओपनिंग का 7,500 माइनस करो. तो डिफरेंस कितना आता देखो. दैट इज कॉल्ड कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आपका है. डिफरेंस आएगा यहाँ पे 22,000 ओपनिंग कैपिटल 22,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट इज 29,600. 29,600 ये आपका है क्लोजिंग का. ओपनिंग है आपका 22,000 और क्लोजिंग है आपका 29,500. तो सेकंड स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ये क्लोजिंग बैलेंस से करना है. क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग डेट लिखो 31st मार्च 2017. कितना है आपका 29,600. इसमें प्लस करना है ऐड करना है. इसमें प्लस करना है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर. ड्राइंग इसमें प्लस होती है. हमेशा ड्राइंग आप माइनस करते हैं कैपिटल में से, मगर इसमें से आपको ड्राइंग प्लस करना है. इसमें इस चैप्टर के अंदर ड्राइंग कितना है. वी रीड द प्रॉब्लम. इसके बाद में एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना है. एडजस्टमेंट रीड करना है. एडजस्टमेंट के पहले स्टेटमेंट को एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करना है. डायरेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी की एसेट शीट टोटल करना है. लायबिलिटी साइड में लिखना है. उसमें जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. क्लोजिंग से आपको स्टेटमेंट की स्टार्ट होती है. जो क्लोजिंग बैलेंस आपका है 31st मार्च 2070 का 29,600. इससे स्टेटमेंट की शुरुआत करना है और ओपनिंग उसमें से माइनस करना है. इस क्लोजिंग में से ओपनिंग हमें माइनस होता है. वी रीड द एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट
ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल and spent 700 for per month. Depreciation आपको दिया यहाँ पे 5% per annum. Depreciation 5% per annum कैलकुलेट करना है और for bread and dog food debts. And she spent 700 per month for her personal during the year. Anjali introduced further capital, that is additional capital. उसके आगे सेंटेंस दिया हुआ 1500 and he spent 700 per month for personal use. Personal use for drawing 700 per month. आपका प्रॉब्लम 12 मंथ का होता है. 700 per month for personal use. पर्सनल यूज के उसमें 700 पर मंथ पे पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग. ये आपका ड्राइंग का अमाउंट है. कितना है आपका 84,400 इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग. इसमें प्लस करो कितना आता है 0 0 0 एक रहेगा 38,000 सॉरी 38,000 क्या होता है उसका अमाउंट आपका है 38,000 आपका अमाउंट है. उसके बाद में लेस एडिशनल कैपिटल. इसमें से एडिशनल कैपिटल क्या होता है लेस होता है. लेस एडिशनल कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल आपको दिया हुआ है इज गिवन टू आवर एज पर आवर टेक्स्ट बुक के अनुसार. जो आपका प्रॉब्लम दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर ही एंजली इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 1,500 आपका एडिशनल कैपिटल. उसमें लेस करो 1,500 इज आवर एडिशनल कैपिटल. 1,500 माइनस करो 38,000 में से 1,500 में कितना रहता है आपका 36,500. इट इज कॉल्ड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. इसे बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस करके निकाला गया उसे कहते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. ये दोनों का प्लस माइनस करके आपने किया इसलिए बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. उसके बाद उसमें प्लस करना है एडिशनल कैपिटल के बाद में माइनस करना है लेस ओपनिंग कैपिटल. जो आपका आंसर आया था ओपनिंग कैपिटल का 22,000 लेस ओपनिंग कैपिटल कितना आपका 22,000 22,000 उसमें से लेस करो लेस 22,000. ये 22,000 जो आपका है ओपनिंग ये आपका ओपनिंग है ओपनिंग कैपिटल आपका है. और 29,600 क्या आपका ये क्लोजिंग आपका कैपिटल आपका वैसा है. क्लोजिंग से स्टार्ट करना है ओपनिंग उसमें से माइनस करना है. 36,500 में से 22,000 माइनस करो कितना आता है आपका 14,500. 5 0 0 6 में से 2 गए 4 और ये कितना रहेगा आपका 14,500 एक रहेगा आपका 3 में से 2 गए 1. इसे बोलना है दैट इज आवर ये जो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से बोलते हैं. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से पहले जो आपने कैलकुलेट किया उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. उसके बाद में आपको एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. एड अनदर एडजस्टमेंट जो आपको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से कहा जाता है वो आपका तो एड इसमें ऐड करना है आपको. ऐड क्या करना है आपको इनकम एंड गेन्स की जो एडजस्टमेंट आपके इनकम एंड गेन्स इसमें ऐड करना है और इसमें से लेस करना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इस एडजस्टमेंट में से लेस करना है इसमें से लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट इसमें से लेस हो गए. यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना है. एडजस्टमेंट से आपके स्टार्ट होते हैं जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें ऐड करना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो एडजस्टमेंट आपके एडजस्टमेंट जो आपको देते हुए उसमें ऐड करना है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एडजस्टमेंट इसमें से माइनस करना है. ये एडजस्टमेंट आपके तो रीड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सेकंड डिप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी. डिप्रिशिएशन हमेशा माइनस होता है तो डिप्रिशिएशन 5% डिप्रिशिएशन लेस होता है डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग का बैलेंस आपको नहीं. ये प्लांट एंड मशीनरी आपका है ये 7,500 है. इस क्लोजिंग बैलेंस पे ये कौन सा बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस. ये क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है डीपी फॉर डिप्रिशिएशन ऑन 7,400 फॉर 12 मंथ के लिए.
12 मंथ का कैलकुलेशन आपका होता है, प्रॉब्लम आपका 12 मंथ का रहता है, इसलिए 12 मंथ का कैलकुलेशन करो। 12 मंथ का कितना होता है देखो, कैलकुलेट करो। 7,500 टोटल आपने कितना है, 700 टोटल कितना आपका, उसके ऊपर कैलकुलेट करो। 7,500 एट 5% से आपको कैलकुलेट करना है। 7,500 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, ये 2 कट हो गया, 2 कट हो गया। 75 इंटू 5 375 आता है, 375 375। नेक्स्ट एडजस्टमेंट माइनस होता है डिप्रेशन हमेशा। एंड क्रिएट आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स, 5% आरडीडी, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, रिड्यूसिंग आरडीडी ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स को आपको कैलकुलेट करना है। डेप्टर्स का भी आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है। ये सैलरी डेप्टर्स आपके पास है, सैलरी डेप्टर्स आपके पास 7,500, ये क्लोजिंग बैलेंस उसका है। ये 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस आपका होता है और 1 अप्रैल का आपका ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका। और क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपका एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना है हमेशा। तो कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस, 7,500। 7,500 के ऊपर आपने कैलकुलेट किया जाए। अगेन ये आपका सेम अमाउंट था, प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स, इनका अमाउंट सेम है, इसलिए आपने कैलकुलेट करके 375। अगेन 375 आपका कैलकुलेशन आएगा, या करके देखो। 7,500 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, 2 कट हो गए, रहेगा 75 इंटू 5 375। ये आपका डेटर्स का एडजस्टमेंट आपका हुआ क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। ये आपका प्लांट एंड मशीनरी का सेम है, 375 370 प्लस, प्लस करके उसके बाद में माइनस करो। उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड होने इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह है क्या देखो। प्रीपेयर क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। यहाँ पे आपको ऐड होने वाले एडजस्टमेंट आपको नहीं दिए हुए, इसलिए ऐड होने वाले एडजस्टमेंट यहाँ पे डैश करो, या उसके ऊपर आपको नील है, यहाँ पे आपको नहीं दिया। ये टोटल करो 14,500, उसमें से लेस करो ये दोनों की टोटल 0 750 14,500 में से माइनस करो 750, तो कितना रहता है देखो 13,750, 13,750। उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिंगुलरिटी सिस्टम मोस्ट बिजनेसमैन हैव अडॉप्ट देयर कैलकुलेशंस, अडॉप्ट द सिंगुलरिटी सिस्टम मेथड्स। इस सिंगुलरिटी सिस्टम से ये प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड से कैलकुलेशन किया है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इनटू दिस प्रॉब्लम वी सी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आपका आया 29,600, ओपनिंग आया 22,000, ओपनिंग क्लोजिंग में से माइनस होता है, और बाद में एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट के बारे में आपको सोचना नहीं है। एडजस्टमेंट आपको बाद में सेकंड स्टेटमेंट में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचना है, वो भी ओपनिंग कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन होता है खत्म। उसके बाद में ऐड करना है एडजस्टमेंट का, ऐड होने वाला एडजस्टमेंट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ऐड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट आपका है, अर्निंग जो इनकम्स आपके और जो गेन्स जो अर्निंग से रिसीव्ड है वो आपको प्लस करना है, और जो डिप्रिसिएशन है, आरडीडी है, अंडर वैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटीज है, वो आपको बाद में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उसका कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे मेजर्स करना है, माइनस करना है। आपका आंसर साइज प्रॉब्लम नंबर 3 का 13,750, 13,750। ये आपका नेट प्रॉफिट आपका है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर मिस अंजलि इज देयर प्रॉफिट इज 13,750। अंजलि का प्रॉफिट कितना है फर्म का 13,750। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सिंगुलरिटी सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सिंगुलरिटी सिस्टम का। ओके, थैंक यू।